ठीक है जी. So along the whole length of the neuron, I hope you can clearly listen to me now and hope there won't be any interruption. So you can also see in this diagram over here that the axon length, ठीक है, जहाँ पे इसने axon लेबल किया हुआ है ना, उसकी आप पूरी लेंथ में देखो that it is covered by a blue colored sheath. ठीक है. This sheath is basically a covering of the Schwann cells. ठीक हो गया. This whole structure is covered by this whole structure is known as the myelin sheath, that is basically covering the length of the axon cells throughout. And this is how it looks like. And you can see in this picture that this myelin sheath, this is basically made up of 70 to 85% of the lipids and 15 to 30% of the protein. So you can also see the function of this myelin sheet, that this layer not only insulates but also accelerates the signaling throughout the length of the axon. Okay, then we can see the final part of this axon length on the extreme right side. ठीक है, जिसको इसने axon terminal लेबल किया हुआ है. ठीक है. उस एक्सॉन टर्मिनल का जो बिल्कुल फाइनल पार्ट है वो आप देखोगे कि हाफ ओवल शेप स्ट्रक्चर्स हैं, इनको कहते हैं आप terminal buton. ठीक है. So these terminal butons basically consist of the neurotransmitters. ठीक है, जो कि क्या करते हैं कि एक एक्सॉन से सिक्रीट होके दूसरे एक्सॉन में जाते हैं टू पास ऑन द एक्शन पोटेंशियल. ठीक है. So this is the whole structure and these are the different parts of it. Then you have the different types of neurons that can be found within your body. That number one is this are the sensory neuron that carry information from organ towards the brain. And then in the second point you can see the different types of senses that they can carry. That involves brain proprioception, thermal sensation. Okay, these are the different types of stimulus that can be carried on by these sensory nerves or neuron towards the brain. Then second type we have the motor neurons. These are the neurons that are present along the length from the brain towards the respective organ. ठीक है, इनको motor organ neurons क्यों कहते हैं? Because these are the neurons that basically help, that these are going to bring signals from the brain towards the organ, and these signals they actually help you in the movement of that specific body part. इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि जैसे ही सिग्नल ब्रेन में रिसीव होते हैं that you have touched something that is causing pain or thermal sensation, you just immediately pull your that specific organ back from that stimulus. So this is how these motor neurons are going to work. Then you have the interneuron. This is basically the junction where the motor and sensory neuron are going to meet in the encephalon or in the gray matter of the encephalon. इसलिए इसको कहते हैं the local circuit cells, because these are basically joining the two different types of neurons at a specific place. ठीक है, ये इसका इमेज है. ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो कि किस तरह से जो efferent और efferent neurons are, these are basically connected in the interneuron section that is present in the gray area. और होता क्या है कि जो efferent न्यूरॉन से आपको सिग्नल रिसीव होते हैं वो यहाँ पे इंटीग्रेट और इंटरप्रेट होंगे. ठीक है, और फिर जो वहाँ से जो सिग्नल जनरेट होगा कि आपने मूवमेंट करनी है या नहीं करनी, वो थ्रू efferent न्यूरॉन्स होता है. ठीक है. सो दिस इज the all of this process, this is how it works. Then the second types of cells that are present in the glial cells, these are the glial cells that are basically present in association with the neuron cells. So you can see their definition as well, that these are the cells of the nervous system that are signaling partners of neuron.
यानी कि जितने भी फंक्शंस न्यूरॉन कर रहा है जो कि आपने उनकी टाइप्स में पढ़े, उनको बेसिकली असिस्ट कौन से सेल्स कर रहे होते हैं? The glial cells. Then you can also see in the second point the general function of these glial cells, that is supportive, protective and nutritive role. Then you have the three types of glial cells: the astrocytes, oligodendrocytes and the microglia. These are the cells that perform these three functions of the glial cells, that is supporting, protective and nutritive role. Now in this diagram you can see the two adjacent neurons. ठीक है, उसी के ऊपर आप देख सकते हो कि किस तरह से माइक्रोग्लाया, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और एस्ट्रोसाइट्स जो हैं वो पूरे डिफरेंट और एक्सॉन के सेक्शंस के साथ एसोसिएट हुए हैं। ठीक है, एंड दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू हेल्प देम इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्टिव, न्यूट्रिटिव एंड सिग्नलिंग फंक्शन or the protective function. You can also go through the section in the book which is going to tell you कि कौन सा जो टाइप का सेल है वो किस तरह के फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है। Then you will come across a heading in your book that is about the electrophysiological features. ये electrophysiological features होते हैं बेसिकली वो तमाम features हैं that you will come across during from the generation of an action potential एंड किस तरह से थ्रू आउट द मेम्ब्रेन सारा पोटेंशियल जो है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, क्या क्या फीचर्स होते हैं वो आप पढ़ोगे। ठीक है, तो बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ होती है? दैट दिस एक्चुअली लेट्स यू अंडरस्टैंड व्हाट sort of different signalings are you will come across in a normal cell. ठीक है, and this also basically helps you that once you know that what is the normal action potential, ठीक है, तो फिर आपको पता चल जाता है कि देयर आर सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट आर बेसिकली यूज टू डिटेक्ट द नर्व पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट सेल्स। तो एक दफ़ा जब आपको नॉर्मल सेल्स का एक्शन पोटेंशियल पता चल जाता है तो यू कैन यूज़ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और उससे आप पता लगा सकते हो कि अगर उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्टर्ब हुआ हो तो आप पता लगा सकते हैं कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एबनॉर्मल एक्टिविटी गोइंग ऑन इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन, and then you can use different interventions to bring the normal action potential back into its place। ठीक है, तो ये एक्शन पोटेंशियल का सबसे बेसिक फीचर क्या होते हैं कि आपको पता है कि कोई भी मेम्ब्रेन होगी, बेशक वो ग्लायल सेल्स या नर्व सेल्स की है या मसल सेल्स की है, दोज मेम्ब्रेन्स आर बेसिकली इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड। इलेक्ट्रिकली पोलराइज का क्या मतलब होता है कि एक मेम्ब्रेन की एक तरफ एक साइन है और दूसरी तरफ जो है वो ऑपोजिट साइन है, यानी कि एक तरफ पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ सारा नेगेटिव है। तो ये जो स्टेट होती है इसको आप कहते हो इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है कि देयर इज अ स्पेसिफिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट इज प्रेजेंट। ठीक है, जिसको कि आप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हो। ठीक है, यानी कि सारे जो हैं अभी पॉजिटिव एक साइड पे हैं और नेगेटिव एक साइड पे। अब ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इट वेरीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, इन केस ऑफ न्यूरॉन्स इट इज -70 millivolts, in case of glial cells it is -80 millivolts। ठीक है, and in order to generate any sort of action potential क्या होना चाहिए कि एक्शन पोटेंशियल भी ऐसा होना चाहिए कि जो इसकी वैल्यू को -70 या -80 से लो कर दे या डिक्रीज करेगा वैल्यू, तब जो है वो एक्शन पोटेंशियल उस पूरी मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफर होगा। ठीक है, यानी कि जो भी स्टिमुलस है, अगर जैसे थर्मल है या पेन स्टिमुलस है, अगर वो if it can decrease that the membrane potential of your neurons or glial cells below -80 or -70, it is going to generate the action potential। ठीक है, अब वो -70 या -80 से बिलो किस वैल्यू पे आएगा तो जनरेट होगा, ये अब हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, so then what is going to happen that once the initial
द एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड, उस स्टेज को आप कहते हो डीपोलराइज स्टेट। ठीक है, पोलराइज स्टेट होती है जब एक टाइप के जो चार्ज है या कैसे ऐसे कि पॉजिटिव है वो एक तरफ हो, नेगेटिव जो है वो दूसरी तरफ हो। डीपोलराइजेशन होती है कि देयर इज शिफ्ट इन द चार्ज, कि नेगेटिव वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और पॉजिटिव वाली साइड पे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो उतनी मेम्ब्रेन का जो पार्ट होता है दैट इज बेसिकली डीपोलराइज्ड। ठीक है, अब इस तरह से मेम्ब्रेन थ्रू जो एक्सॉन की है या न्यूरॉन्स की है वो जब डीपोलराइज होती है तो इस तरह की डीपोलराइजेशन होती है अलोंग द होल लेंथ ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, पर जब ये अलोंग द होल लेंथ ऑफ द मेम्ब्रेन ट्रेवल करती है तो वो आपको पता है कि पूरी एक्सॉन की बॉडी से होकर उसके टर्मिनल पार्ट पे जाएगी। ठीक है, टर्मिनल पार्ट पे आपको पता है कि टर्मिनल न्यूरॉन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि रिलीज होंगे, और वो जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसफर कर देंगे फ्रॉम वन एक्सॉन टू द अदर एक्सॉन। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द transport of this action potential. Now we will phase wise we will study how this action potential is generated throughout the membrane of any of the nerve cells. So action potential, it is generated once there is any sort of stimulus on the surface of the cells. ठीक है, वो surface of the cell आपको पता है cell membrane के ऊपर different proteins होते हैं. So those proteins will basically associate that once there is any sort of stimulus, those proteins will help in the mediation of this action potential. Okay, then there are different types of phases through which this action potential is going to occur. First is the resting potential. ठीक है, जिसमें आपको पता है कि मेम्ब्रेन जो है इट इज इन पोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, यानी कि प्लस या पॉजिटिव चार्जेस ऑन वन साइड एंड द नेगेटिव इज गोइंग टू बी ऑन द अदर साइड। Second is the depolarization. Then this depolarization is followed by repolarization, then hyperpolarization, and finally the recovery period. Okay, so these are some of the features of the resting potential. So the basic idea of resting potential is that in this case the membrane is polarized, that positive charges are present on one side and negative on the other side. इसमें आपको पता है कि जब पॉजिटिव एक साइड पे और नेगेटिव एक साइड पे है तो ओवरऑल चार्ज जो है वो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, सो देयर इज नो नेट चार्ज एंड दिस स्टेट इज आल्सो नोन एज द नर्नेस्ट पोटेंशियल। ठीक है, ये एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हो that basically in this case there is, you can also see the purple or blue or green color, these are basically the ion channels और सोडियम पोटेशियम पंप्स। अब जब ये रेस्टिंग पोटेंशियल होता है तो इस तरह की स्टेट होती है कि पॉजिटिव आयन जो है वो नर्व की एक साइड पे है, नेगेटिव जो है वो नर्व की दूसरी साइड पे होता है। ठीक है, तो once there is any type of signal or stimulus that is received, what is going to happen, there is going to be another phase that is known as the depolarization phase. अब डीपोलराइजेशन में क्या होता है कि नर्व का वो पोर्शन जहाँ पे वो एक इफेक्टिव स्टिमुलस रिसीव हुआ है वहाँ पे साइंस जो है वो ऑपोजिट पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है, क्यों आ जाते हैं, बिकॉज जो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। वंस देयर इज एन इफेक्टिव स्टिमुलस इट इज गोइंग टू लीड टू द ओपनिंग ऑफ दीज what you call the sodium potassium channels. उससे क्या होता है कि sodium is going to move in and potassium is going to move out, so that particular section of the membrane is now basically depolarized. ठीक है, so every three of the molecules of sodium they are going to move into the cell and potassium is going to move out, so there is a potential gradient that develops कि overall जो net charge है inside वो positive हो जाएगा और उसके रिलेटिवली क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बाहर कम हो गया सो इट इज ऑब्जर्व्ड एज द नेगेटिव पोटेंशियल आउटसाइड द मेम्ब्रेन सरफेस। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक।
अब क्या होता है कि आपको मैंने बताया था कि नर्व पोटेंशियल जो है वो थ्रू आउट द मेम्ब्रेन की एक सेक्शन से दूसरी सेक्शन में जा रहा होता है, ठीक है। तो जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक सेक्शन को डीपोलराइज करता है, वो इसी तरह से डीपोलराइज करके जब आगे मूव करेगा तो वो आगे वाले सेक्शन मेम्ब्रेन के सेक्शन को डीपोलराइज कर देगा, और उसका जो पिछला पार्ट होता है मेम्ब्रेन का, दैट इज गोइंग टू रिपोलराइज, क्योंकि वहां से अब जो है स्टिमुलस आगे मूव कर गया। तो वो जो स्टेट आती है उसको आप कहते हो रिपोलराइजेशन। तो इसमें होता क्या है कि ड्यूरिंग दिस फेज द इंटरसेलुलर पोलैरिटी इज गोइंग टू रिवर्स, ठीक है। यानी कि जैसे सोडियम चैनल पहले या पोटेशियम चैनल एक्टिवेट हुए थे, जिस तरह से ही अब उस एरिया से सिग्नल स्टिमुलस जो है वो आगे मूव कर गया, तो पिछला वाला पोर्शन जो है वहां के सोडियम चैनल्स इनएक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। एंड पोटेशियम चैनल्स आर गोइंग टू एक्टिवेट, जिसकी वजह से पोटेशियम चैनल जो है वो ज्यादा अंदर को मूव करेंगे, ठीक है। और सोडियम चैनल्स की आपको पता है ब्लॉकेज हो गया। सो दिस इज गोइंग टू स्टार्ट द repolarization of the membrane, ठीक है। इस इमेज में देखो क्या हो रहा है कि जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेम्ब्रेन के एक पार्ट से आगे मूव कर गया, तो तो उस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की जो है वो रीपोलराइजेशन हो गई है। किस तरह से हो गई है कि सोडियम चैनल्स बंद और पोटेशियम चैनल जो हैं वो खुल जाएंगे, जिसकी वजह से पोटेशियम इनफ्लक्स होगा, and there is going to be low quantity of sodium then as compared to the potassium, so the polarity is going to be reversed, ठीक है। ये एक इमेज है जो आपको दिखा रहा है कि किस तरह से जब जो डायरेक्शन है एक्शन पोटेंशियल की वो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, और उसमें आप देखो कि जिस तरह से ही एक्शन पोटेंशियल फॉरवर्ड पोजीशन में मूव करता है, तो आप देखें कि एक मेम्ब्रेन का सेक्शन वो नेगेटिव हो गया जहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, उससे जो पिछला सेक्शन है वहाँ पे पोलैरिटी जो है वो रिवर्स हो जाती है, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जो है वो यहाँ से गुजर के मेम्ब्रेन के नेक्स्ट पार्ट पे चला गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस एक्शन पोटेंशियल इज गोइंग टू वर्क, ठीक है। ऊपर आप देख सकते हैं कि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेशन की जो है वो टाइमिंग कितनी होती है, इट इज़ वेरी क्विक। अगर आप कभी सोचे ना कि एक जब जो भी स्टिमुलस पेन या थर्मल सेंसेशन आपको फील होती है, तो आप विद इन मिली सेकेंड जो है वो उसको रिमूव कर लेते हो। तो ये जो सारा प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, दिस बेसिकली अकर्स विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 2 मिली सेकेंड्स, ठीक है। बहुत तेजी के साथ वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होके दोबारा से वो रेस्टिंग में आ जाता है, ठीक है। देन देयर इज अनदर टर्म दैट वी डिस्कस, दैट इज हाइपरपोलराइजेशन। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई स्टिमुलस जनरेट होता है जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल आ गया, तो जब एक्शन पोटेंशियल अपनी पीक पे जाता है, तो आपको पता है कि उसकी उसके बाद रिपोलराइजेशन होनी है। तो जब रिपोलराइजेशन होती है तो आपको पता है पोटेशियम चैनल जो है वो ओपन होंगे, पोटेशियम का इन्फ्लक्स ज़्यादा होगा। तो क्या होता है कि उसके बाद जो ये हाइपरपोलराइजेशन के केस में क्या होता है कि दिस बेसिकली ओपनिंग ऑफ द पोटेशियम चैनल बेसिकली स्टेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से पोटेशियम इनफ्लक्स ज़्यादा हो जाता है, और इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इट इज़ गोइंग टू स्टे नेगेटिव फॉर अ ग्रेटर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब जब ज़्यादा पोटेशियम अंदर आ रहा है और ज़्यादा नेगेटिव हो गया इन साइड पे, तो उसके बाद क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल दोबारा जनरेट होने में टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है, ठीक है। जैसे कि पहले एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने में अगर आपको 2 मिली सेकेंड्स लगे हैं ना, तो ड्यू टू रिपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन दोबारा जो उस रीजन के ऊपर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा उसको कम से कम 3 to 4 मिली सेकेंड लग सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उस वक्त आपको जो है ज़्यादा वोल्टेज का स्टिमुलस चाहिए होता है जो कि एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करे, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू जनरेट सेकंड एक्शन पोटेंशियल, a stimulus of higher quantity is required for about and for a greater amount of time to generate the action potential for the second time, ठीक है।
सो ये जो टाइम होता है 3 to 4 सेकंड का, दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेकंड एक्शन पोटेंशियल, दिस इज नोन एज द रिकवरी पीरियड। ठीक है, इसमें आप देखोगे ड्यूरिंग दिस स्टेज द नेगेटिव चार्ज ऑन द मेम्ब्रेन इज मोर देन द कंट्रोल लेवल, देयर इज इंक्रीज परमेबिलिटी टू द पोटेशियम। चूंकि अब इन्फ्लक्स जो है वो पोटेशियम का ज़्यादा हो गया, इसलिए दोबारा से एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, पोटेशियम इन्फ्लक्स भी ज़्यादा चाहिए। सो इट रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ टाइम फॉर इनफ्लक्स फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द सोडियम चैनल एंड इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम चैनल, जिसकी वजह से ये रिकवरी पीरियड अकर करता है। ठीक है, ये आप डायग्राम देखें, एक तरफ वोल्टेज है और दूसरी तरफ टाइम है। इसमें उसने बताया हुआ है कि अगर -70 जो है मिली वोल्ट वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, तो मिनिमम अगर -55 तक जो है अगर स्टिमुलस इस वोल्टेज को कम कर देता है तब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। ठीक है, दूसरा आप पिक्चर में देख सकते हो फील्ड इनिशिएशन, वो किस वजह से है कि स्टिमुलस तो आया है लेकिन वो वोल्टेज को -55 तक नहीं लेके जा सका, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू cause an action potential in a nerve cell or a neuron, a, a stimulus is required that can decrease the the potential up to -55। ठीक है, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन होगी, फिर एक्शन पोटेंशियल होगा। ठीक है, एंड देन देयर इज गोइंग टू बी रीपोलराइजेशन। ठीक है, रीपोलराइजेशन के बाद में हमने आपको बताया था कि पोटेशियम इन्फ्लक्स चूंकि ज़्यादा हो रहा है, पोलैरिटी दोबारा से चेंज हो रही है, इसकी वजह से जो एक टाइम आता है रिफ्रैक्टरी पीरियड जिसमें इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम ज़्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से दोबारा से रेस्टिंग स्टेट या एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए इट टेक्स अबाउट 3 to 4 मिली सेकेंड। तो ये जो टाइम पीरियड होता है इसको आप कहते हो रिफ्रैक्टरी पीरियड। दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू जनरेट अ सेकेंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दिस इज नोन एज द रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, सो इस तरह से क्या होता है कि एक जो भी स्टिमुलस आया है उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और वो एक्शन पोटेंशियल थ्रू आउट द एक्सॉन मेम्ब्रेन ट्रेवल करता है। अब वो थ्रू आउट द मेम्ब्रेन जब ट्रेवल करता है तो यहाँ पे हम एक नेक्स्ट टॉपिक आ गया, दैट इज द प्रोपोगेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। इसमें वो ये बता रहा है कि एक जो एक्सॉन की लेंथ है उसमें डायरेक्शन क्या होती है एक्शन पोटेंशियल की। दो डायरेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, एक ऑर्थोडॉर्मिक और दूसरी है एंटीडॉर्मिक। ठीक है, तो एंटीडॉर्मिक क्या होती है, ऑर्थोडॉर्मिक होती है इन स्ट्रेट डायरेक्शन फ्रॉम द डेंड्राइट्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। एंटीडॉर्मिक क्या होती है इन द ऑपोजिट वे। ठीक है, फ्रॉम the length of the axon towards the cell body and then towards the dendrites। ठीक है, so this is how it is, and then you have two of the terms that you can see over here, that is the nodes of Ranvier। ठीक है, ये पिक्चर अगर आप देखें तो दिस इज द होल लेंथ ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, इसमें इसने येलो रीजन को लेबल किया हुआ है माइलिन शीथ। ठीक है, तो दो जो एडजेसेंट शीथ हैं उसके दरमियान आप स्पेस देख सकते हो ना, जहाँ पे वो नेगेटिव चार्जेस दिखा रहा है। ये बेसिकली दीज आर द रीजन्स नोन एज द nodes of Ranvier। These are the areas in between the two adjacent myelin sheets। ठीक है, so ये जो conduction होती है ना, when there is nerve conduction from one node of Ranvier to the other node of Ranvier, this is fast conduction of the action potential and this is known as the saltatory conduction। ठीक है, इस सेक्शन में भी आप देख सकते हो कि किस तरह से एक सेक्शन में पहले डीपोलराइजेशन हो रही है। ठीक है, फिर जब नर्व पोटेंशियल आगे मूव कर गया तो पिछले सेक्शन में डीपोलराइजेशन हो जाती है, रीपोलराइजेशन। ठीक है, अब आपको पता है कि जब एक एक्सॉन की साइड बिल्कुल एंड पे जब पहुंच जाता है एक्शन पोटेंशियल, तो अब क्या होना होता है कि वहां पे जाके जो एक्शन पोटेंशियल है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्टिव कर देता है। ठीक है, अब ये जब न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्टिव होते हैं उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो
दो टाइप्स के होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, एक्टिव या इनहिबिटरी। अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्टिव हुए हैं तो ये क्या करेंगे कि वो जो एक्शन पोटेंशियल है उसको एक्सॉन की एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। और अगर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं तो वो क्या करते हैं कि एक्सॉन के का जो एक्शन पोटेंशियल है उसको टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। देन वी हैव द साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, ठीक है। उसके लिए जो ये आपकी बुक की डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो आपकी बुक के इस चैप्टर में जो लास्ट डायग्राम दी हुई है ना, उसमें आपको साइनेप्टिक ट्रांसमिशन समझ आएगी, ठीक है। उसमें आप प्री साइनेप्टिक सेल का पार्ट देखें, उसमें क्या हो रहा है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होके टर्मिनल ब्यूटॉन वाले रीजन में आया, और वो टर्मिनल ब्यूटॉन वाले रीजन में आके क्या करता है कि कैल्शियम चैनल्स को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। कैल्शियम चैनल्स जब एक्टिवेट हो गए, कैल्शियम इनफ्लक्स होगा, तो वो क्या करता है कि न्यूरोट्रांसमीटर जो कि वेसिकल में प्रेजेंट होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर देता है टू द मेम्ब्रेन ऑफ द टर्मिनल एक्सॉन, जहां से वो एक्सोसाइटोज होके साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आते हैं, जो कि स्पेस होती है बिटवीन द टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स, ठीक है। और फिर वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट से वो न्यूरोट्रांसमीटर्स ट्रांसपोर्ट होते हैं इनटू द एडजेसेंट न्यूरॉन, और वो इस तरह से एक्शन पोटेंशियल को फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ द साइनेप्टिक ट्रांसमिशन गोज ऑन, कि जब एक्शन पोटेंशियल नर्व के एंड पे आएगा तो क्या करेगा, कैल्शियम चैनल्स एक्टिवेट करेगा, कैल्शियम इनफ्लक्स की वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को ट्रांसपोर्ट कर देंगे इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, and then those transmitters will be attached to the surface receptors of the adjacent axon, and it will, this is how the action potential is generated from one neuron to the other. So this is how action potential is going to move in case of the neuron cell. So this is the end of my lecture. So I'll see you in the key discussion of the test now. So now you have the next lecture regarding tooth development. So any question that you have regarding this topic you can ask. ठीक है, वैसे तो इससे ज़्यादा डिटेल आपने पढ़ी होगी इसकी न्यूरो एनाटमी में या इवन फिजियोलॉजी में, but if you have any question, you have last 3 minutes to ask.